Thank you very much, everyone. I could get the chance to hear only one or two speaker. I was working, and I today on this auspicious day, I'm going to talk about working women. I am working, so I can mostly relate to it. Um, and to begin with, as our topic today is, as it is a Human Rights Day, let me begin with the first thought that comes to my mind. Why are the human rights called as human rights? We, under our constitution, we have them under the head fundamental rights, because they are not only fundamental, they are human, and we get them long before the inception of the state was done. Matlab, long before the state was incepted, the human right existed with us. Whenever a person is born as a human, he gets those rights, he's bestowed with those rights by the very nature by which he or she is born. So they are never to be given by any state, and so they cannot never be changed or taken away or infringed by any state. So it is the primary responsibility of any state to secure, to give an environment where they can exercise these rights in the best manner. And now I would like to begin my opinion on the topic. See, the women are also the part of this species. We are almost like 49 to 50% women are there. And so today in this lecture, I would like to talk about that one single act which relates to women, and which is sexual harassment against women, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. To begin with that, I should start with the fact that whenever any discourse on women takes place or at any platform, we all begin with saying, we almost like everyone begin with saying that yatra naryastu pujante ramante tatra devta, and from that the discourse usually ends with mansikta, the mentality of people, and there we finalize the discourse, and within which the whole problem lies. And from there we have to take our opinions, and from there we have to retrieve what we can do further with regard to it. So I would like to say, if at all the matter is all about mentality, I remember that Ram Singh, the perpetrator of the crime of Nirbhaya gang rape case, we all remember. I heard him saying somewhere in that BBC documentary, he said कि जो लड़की इतनी रात में ऐसे शराब पीकर बाहर निकलती है, वो चाहे कंपनी हो किसी मेल काउंटर पार्ट के साथ या whatever, जो इतनी देर रात में निकलती है, वो ऐसी दुर्भावना को इनवाइट करती है. This is the mentality that we have to crack, and we have not yet been able to crack that mentality. और ऐसा कोई मंच नहीं हो सकता जहां से हम ऐसी सारी मानसिकताओं को एड्रेस कर सकें, ऐसी सारी मानसिकताओं को की बात कर सकें. और ये छोटे और बड़े और किसी और की बात आप छोड़ दीजिए, यू विल मतलब कट अक्रॉस नेशन और व्हाटएवर, आपको सारे सेट्स में इस तरह की दुर्भावनाएं मिल जाएंगी, इस तरह के मामले मिल जाएंगे. 2-3 मामलों का मैं उदाहरण दूंगी, एंड आई ब्रीफली टॉक अबाउट दिस थिंग. पहला मामला एक एमपी हाई कोर्ट के सिटिंग जज का मैं लूंगी. उनके अगेंस्ट वहां पे उसी डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट के अधीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फाइल किया था, एक विमेन ने. अब मजिस्ट्रेट का मामला फाइल करना, एफआईआर को रजिस्टर कराना इतनी बड़ी कार्रवाई रही होगी, बिकॉज द हाई कोर्ट जज वाज सिटिंग एट दैट टाइम. उस बड़ी कार्रवाई के बाद में निकल के ये आता है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है एसएलपी में. एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑल द केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज टू बी टेकन ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट द टेस्ट ऑफ finding out what has happened and what effect it has created is very subjective. ये perpetrator और victim के बीच का जो इफेक्ट है ना, जो ट्रॉमा है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो ट्रॉमा है, ये केवल उसके बेसिस पर तय किया जाना चाहिए. दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन एनी अदर ग्राउंड. किसी प्रेसिडेंस के आधार पर इसको तय नहीं किया जा सकता है. मूविंग फर्दर, एक बात और बड़ी सरप्राइजिंग है कि हम इतने सारे जब विमेन काम करने लगी है, विमेन वर्कफोर्स अपने राइट्स को इतना डिमांड कर रही है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो एक्ट हमारा 2013 में आया है, 21वीं सदी के 13 साल के बाद में आया है,
ये 1950, 60, 70, 80, 90 और 2000 के दशक तक भी इस रूप में ये मामला हमारे सामने आया नहीं। इसे हमने इतने सेंसिटिव विषय को भी हमने केवल आईपीसी के वो एक वन सिंगल सेक्शन था 354, 354 उसी के अधीन माना और समझा। और 354 के एग्जीक्यूशन में भी, मतलब उसकी एप्लीकेशन में भी, द कोर्ट हैव रिमेन सो टिमिड, आई वुड से, कि उन्होंने उसका एप्लीकेशन करने से ये कह के इनकार किया कि द प्राइमरी टेस्ट ऑफ अप्लाइंग दिस सेक्शन 354 इज whether the act was committed with an intent to outrage the modesty of a woman or with the knowledge to outrage the modesty of the women or not। मतलब इन्हीं दोनों के ऊपर होगा। अब मैं आपको मामले बताती हूँ। एक मामला वेस्ट बंगाल का था। एक औरत पारुल भट्टाचार्य करके, उसका सीट के लिए झगड़ा हुआ अपने सहयात्री के साथ में, उसने उसके साथ मैन हैंडलिंग किया। तो आप समझ सकते हैं कि बस के बीच में जब वो मैन हैंडलिंग हुई तो क्या हुआ होगा। मतलब उसका साड़ी खुल गया, उसके साथ जो कुछ भी बदतमीजी हुई, इट वाज अ बिग ट्रॉमा ऑन हर। और मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। तो किसी मामले का ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना अपने आप में 10, 12, 15 साल की कार्रवाई रही होगी, लेकिन वो ये जंग हारी नहीं। 1954 का मामला है ये। कोर्ट कहता है जब तक इंटेंट नहीं है, कोर्ट ने फाइनली ये माना कि ये तो सीट का झगड़ा था, इसमें मोडेस्टी को आउटरीच करने वाली बात नहीं। एक और देवेंद्र सिंह का मामला है, उसमें एक 15 साल की बच्ची को स्कूल में कुछ लड़के जाते हैं, षड्यंत्र करके जाते हैं, उसको घसीटते हैं, लेटर देन रेप एंड एवरीथिंग वाज डन। मतलब एक रेप कमिट नहीं किया था, लेकिन उसके साथ हर बदतमीजी की, क्रूरता की हद उन्होंने लांघ दिया था। कोर्ट कहता है कि जब तक इंटेंट या नॉलेज नहीं है हम 354 अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक मामला मैं 1992 का लाऊंगी, जिसमें एक कांस्टेबल वो अपना रूटीन चेक के लिए स्लम्स में जाता है, और स्लम्स में वो भानुबाई करके एक लेडी है। शी वाज सपोजेडली, मतलब शी हैव हैड अ बैड नेम फॉर और बैड नेम समाज में महिला का कैसे हो जाता है, वी ऑल अंडरस्टैंड कि हाउ इजी इट इज फॉर एवरीवन टू। तो एनीवेज वो उस महिला के साथ में सेक्सुअल रिलेशन की डिमांड करता है वो पुलिस ऑफिसर, और जाता वहां पे वो अवैध शराब वगैरह के रूटीन चेक के लिए। वो महिला मना कर देती है, वो फोर्सफुली उसके साथ संबंध स्थापित करता है, वो उसकी एफआईआर करती है। अब पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर करना कितनी बड़ी जंग होगी आप मैं सब समझ सकते हैं। लेकिन वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वो पहला मैटर ऐसा दिखता है जहां पे कोर्ट कहता है इवन अ वुमन ऑफ इजी वर्च्यू हैज अ राइट ऑफ प्रिवेसी। तो ये समझिए कि इतने सालों में, मैंने आजादी के बाद से लेकर के 1992 का ये मामला है, 1992 का 100 दिन चले 2.5 को, वहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अभी भी हम डिफेंसिव है, देयर वाज नो अटैक, rather we are defending on the ground that a woman of easy virtue will also have a right to have have privacy, मतलब उसको भी आउटरीच करने का आपको अधिकार नहीं होगा। रूपन देवल बजाज को हमें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे रूपन देवल के खिलाफ जो कुछ भी हुआ था, इट वाज वेरी पब्लिक। आईएएस का वो एक सर्कल था जिसमें वो बैठी हुई थी, उनको केपीएस गिल ने उंगली के इशारे पर बुलाया, शी डिड नॉट लाइक इट, शी स्टूड अप एंड द फेलो slapped on her posterior. Imagine the trauma of that high-ranking official, that person, और उन्होंने, she was very very committed। अच्छा, इस बीच में मुझे एक बात और याद आती है कि जो जिस जज की मैं बात कर रही थी, जुडिशियल ऑफिसर की, मजिस्ट्रेट की, जिन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अगेंस्ट वो मुकदमा फाइल किया था, वो उन्हें रिजाइन करना पड़ा, और उसके बाद शी इनिशिएटेड हर होल प्रोसेस, ये जुडिशियल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो द वुमेन हैव गिवन अ ह्यूज कॉस्ट टू इट, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। रूपन देव बजाज के केस में भी यही हुआ कि उन्होंने भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी, एंड देन द केस वाज फाइनली सेट इनटू मोशन, जुडिशियल प्रोसेस वाज फाइनली सेट इनटू मोशन। तो हर सेक्ट में आपको ये मिल जाएगा। फिर वो विशाखा वाली बात हमें भूलना नहीं चाहिए। 1997 में भावरी देवी के गैंगरेप के बाद में विशाखा नाम से एक पीआईएल फाइल की जाती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन जारी करता है कि वर्किंग लेडीज के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जाने की जरूरत है। दिस केम इन 1997, और उसके भी बाद लगभग 15-17 साल लग जाते हैं जब सरकार सेंसिटाइज होती है, सेंसिटाइज अनफ टू गेट अ लेजिस्लेशन फॉर द वर्किंग वुमेन। और 2013 में ये एक्ट आता है विच वी कॉल
sexual harassment against women, the Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. And now, since I'm asked to wind up my lecture, I can only say, see, the whole problem is all about how we raise. हम जो millennium women हैं, we are raised by what not to do, what not to say, what not to speak, how not to behave. So as long as we are kept into we are told to keep secrets, not to push our desires forward. हमें अपने pleasure के बारे में बात करना नहीं है, ऐसा सिखाया जाता है, So we cannot open up about our desire, our needs, and Yeah. All right. So I will expect our youth to take my opinion further, and so that we can make this world a better place to live for women also. Thank you very much, and thank you for